Assalamu alaikum. Welcome to the class Marketing Management. This is first chapter defining marketing for 21st century. Of this chapters are after reading this chapter we will be able to define marketing and discuss its core concepts, and also we will be able to define marketing management and compare the 5 marketing management orientations. So we can understand customer relationship management CRM and its strategies, and we will be able to realize the major challenges the marketers are facing in this new era. This chapter with the definition of marketing. What is marketing? So marketing is managing profitable customer relationship. Customer के साथ profitable relationship build करना, that is the marketing. That is the very gist of the marketing. Two things they are discussing over there: the attracting the new customers and retaining and growing the current customers. So companies should have to focus more on retaining and growing the current customers, because attracting the new customer is very expensive. There are some मिसअंडरस्टैंडिंग्स. लोग गलत फील करते हैं मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग इज़ अ सेल्स और एडवर्टाइजिंग. जब एक आप कोई कमर्शियल देख रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग देख रहे होते हैं, या कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, सेल्समैन जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, दिट्स नॉट द मार्केटिंग. These are the parts of marketing, some small parts of marketing, but marketing is as a whole, it's a very big thing. So you can say these are the edges of iceberg. ये जो मार्केट एडवर्टाइजिंग है और सेल्स है, ये आइसबर्ग्स हैं. ओवरऑल मार्केटिंग जो है एक वास्ट फिनोमिना है. हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, he defines marketing. Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products. What is marketing? Kotler defines marketing as marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others. So according to Kotler, marketing जो है वो एक social process है in which the individuals or groups are exchanging what they need and want. So typical phenomena में अगर हम देखें तो जो consumer है वो products लेता है और valuable चीज़ मनी और एनी अदर, अगर हम बार्टर सिस्टम को देखें तो कोई और कमोडिटी जो है वो उसके अगेंस्ट वो ट्रेड कर रहा होता है. सो इट्स अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस. थोड़ा सा फर्दर हम इसको चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. मार्केटिंग मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो इट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स and getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value. So यहाँ पर 3 different parts में इस definition को हम divide करते हैं. First, what marketing management is an art and science. It's an art and science of what? क्या करने के लिए हम इस art और science को use करते हैं? Choosing target markets means we have to select to whom we have to serve. आपकी टारगेट मार्केट कौन है, किन लोगों को हमें सर्व करना है, किन लोगों के लिए हमें प्रोडक्ट बनानी है, सर्विसेज बनानी है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. ठीक है, टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करना. देन गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स. ये जो हमने स्टार्ट में देखा था कि वी हैव टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर्स, वी हैव टू रिटेन एंड ग्रो द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. सो वी हैव टू गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग. गेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग द न्यू कस्टमर्स, कीपिंग एंड ग्रोइंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. क्योंकि कस्टमर बेस जितनी ज़्यादा होगी आपकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ही कंपनी की ग्रोथ को डिफाइन कर रही होती है. हाउ वी कैन डू दिस गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स? थ्रू क्रिएटिंग, delivering and communicating superior customer value. So we can do all these things by creating. We can create the product, we can create the service. This is the first P, product. Then delivering, the placement, we should be make the product available to the customers. And communicating, the promotion. हमें कस्टमर को बताना भी पड़ेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट बनाई है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, आपके लिए कैसे वैल्यूएबल है. सो वी आर यूजिंग ऑल दिस 4 P's ओवर देयर. जाहिर सी बात है जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो उसके लिए कुछ पे भी करेगा, तो वो प्राइस होगी. सो प्रोडक्ट, प्लेसमेंट, promotion and pricing for the superior customer value means कि what the customer is getting should be superior from the competitors.
कस्टमर को आपके प्रोडक्ट कंपेटिटर के मुकाबले में सुपीरियर लगना भी ज़रूरी है, उसकी वैल्यू व्हाट दे आर गेटिंग, सो व्हाट दे आर पेइंग एंड व्हाट दे आर रिसीविंग, द डिफरेंस इज द वैल्यू। मीन्स कि कस्टमर जो अमाउंट पे कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलना ज़रूरी है। तो दिस इज़ दी मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मैनी थिंग्स कैन बी मार्केटेड, हम बहुत सारी चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मार्केटेड इज इन दिस स्फेयर ऑफ मार्केटिंग। सो डिफरेंट थिंग्स जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में भी डिस्कस की थी वही यहाँ पर अवेलेबल है। गुड्स प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी मार्केट हो सकती हैं, डेली बेसिस पर आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं। आपके FMCGs हैं, होम अप्लाइंसेज हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, a lot of things are there which are under part of goods. Then services, there are a number of services available like डॉक्टर है, हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा होटल्स हैं, हॉस्टल सर्विस है। तो different services you are getting which is not in exchange of any product but you are getting with the help of expertise. Services आप expertise के form में ले रहे हैं। Then experiences, there also can be marketed. A good experience like experiential marketing is the well known phenomenon nowadays कि companies जो हैं वो अपने product की experiential marketing कर रही होती हैं, अपने experiences provide कर रही होती हैं in the form of like amusement parks आप देखें तो they are providing the experiences, good amusement experiences। ऐसे ही गेमिंग स्टेशंस अवेलेबल होते हैं, वो भी गुड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। देन वी हैव इवेंट्स लाइक फीफा वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, these are the events, they can also be marketed. And persons, individuals can also be marketed. An individual which has very known personality, they can be marketed. Nowadays different doctors are personalizing themselves and they are marketing themselves. और इसके अलावा कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने आप को मार्केट कर रही होती हैं, तो दीज आर द इंडिविजुअल पर्सन और द फेमस साइंटिस्ट, वो भी पर्सनल पर्सन जो है वो एज ए मार्केटिंग टू यूज़ होते हैं, जिनको मार्केट किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। देन प्लेसेस, देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। डेस्टिनेशन मार्केटिंग इसमें आ जाता है, जैसे पाकिस्तान में जो है नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इंडिया में जो है वो शिमला है और भी बहुत सारे गुजरात के बंगाल टाइगर्स हैं। तो दे हैव डिफरेंट ब्रांड एम्बेसडर्स फॉर दिस पोजीशंस लाइक अमिताभ बच्चन was the brand ambassador of one well-renowned place like Gujarat, and some other celebrities are also promoting the places. Then properties, these are the real estate, आपके अपार्टमेंट्स हैं, होम्स हैं, प्लॉट्स हैं, वो डिफरेंट इनको भी मार्केट किया जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन itself, when the organizations are well renowned and they have a series of successful products, then they are marketing themselves, they are utilizing themselves. Like you can take the example of Nestle और Unilever, whenever they are advertising their product, हर एडवर्टाइजिंग के आखिर में वो अपने प्रोडक्ट का लोगो दिखा रहे होते हैं, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ Unilever और Nestle. Then information, it's an also nowadays in this IoT का जो इरा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इरा, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मायने रख रही होती है, तो इन्फॉर्मेशन को भी मार्केट किया जाता है। लाइक वन फेमस कंपनी who is producing the ultrasound and X-ray machines, this is the Siemens. Their marketing manager said that we are not selling equipments, we are selling information, because with the help of the provided information by our equipments provide guidelines to the specialists, doctors, to make the right decision about the patient. ऐसे ही आपका सोशल मीडिया डेटा है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है, आपका कंज्यूमर डेटा है, आपके सेल्स रिकॉर्ड्स हैं, दीज आर ऑल्सो ऑल इन्फॉर्मेशन। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अलीबाबा है, अमेज़ॉन है, दराज है, पाकिस्तान में जैसे वर्कआउट कर रही है, या इंडिया के आप एग्जांपल लें तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट बड़ी फेमस जो है वो स्टार्टअप था जिसने अभी तक एक बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब किया हुआ है ई कॉमर्स का। तो ये कंपनीज जो हैं वो इन्फॉर्मेशन सेल कर रही होती हैं, इन्फॉर्मेशन मार्केट कर रही होती है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स, कि कौन से कस्टमर को किस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट चाहिए और कौन कौन से कस्टमर इस वक्त किस टाइप की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो कंपनीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। देन आइडियाज़ दैट कैन आल्सो बी सोल्ड, ideas are the a new conviction of mind, what you are thinking about the world, if it is unique and workable, the people can get this
पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो प्लान 9 के नाम से गवर्नमेंट ने एक प्लान शुरू किया हुआ है कि दे वेयर द आइडियाज़ आर बीइंग सोल्ड। तो डिफरेंट स्टार्टअप्स वहाँ पर आती हैं और इन्वेस्टर्स भी आते हैं। इन्वेस्टर्स उनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं और अगर उनको वो आइडिया पसंद आता है तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या उसे परचेज़ कर लेते हैं। ऐसे ही टेलीनॉर जो है वो टेलीनॉर वेलोसिटी के नाम से एक फॉर्म चला रही है जो कि आइडियाज़ को परचेज़ करती है या इन्वेस्टर्स और आइडिया जनरेटर्स को मिलाती है। सो मार्केट्स की हमने बात की। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर गेट टुगेदर। यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स होती हैं हमारे पास, जैसे रिसोर्स मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, इंटरमीडिएटरी मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है और गवर्नमेंट मार्केट्स हैं। हम वन बाय वन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी रिसोर्स मार्केट, दिस इज़ द रॉ मटेरियल। रिसोर्सेज आर द रॉ मटेरियल्स जो कि माइंस फर्म्स हैं या रॉ मटेरियल एक्विजिशन फर्म्स हैं जो कि आपकी कंपनीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही होती हैं। टिम्बर कंपनीज़ हैं, केमिकल कंपनीज़ हैं या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वो रिसोर्स फर्म्स हैं जो कि आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इन रिसोर्सेज को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, रिसोर्सेज रिसीव करता है और मनी जो है वो रिसोर्स फर्म्स को दे देता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया और गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर कर दिया इंटरमीडिएटरी मार्केट्स। जो दरमियान में होलसेलर्स, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स को रिसीव करते हैं और इसके अगेंस्ट मनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को दे देते हैं। नाउ दीज इंटरमीडिएटरीज आर ट्रांसफरिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर मार्केट, जहाँ पर बायर और सेलर फाइनल कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है और अगेन मनी दोबारा वो जो है वो इंटरमीडिएट मार्केट को ट्रांसफर कर देती है। इनके दरमियान में इस पूरे स्फेयर को चलाने के लिए दरमियान में गवर्नमेंट मार्केट्स होती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं और इसके अगेंस्ट टैक्सेस जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। सो अगर आप देखें तो दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एंड दे आर गेटिंग टैक्सेस। तो यहाँ से भी टैक्सेस गुड्स रिसीव कर रहे होते हैं और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैट इज सम मनी सप्लाई आल्सो अवेलेबल ओवर देयर, दे आर प्रोवाइडिंग द मनी सप्लाई एंड गेटिंग दी टैक्सेस। तमाम साइड से वो टैक्सेस जो है वो रिसीव कर रहे होते हैं ज़्यादा गवर्नमेंट मार्केट्स। सो ये जो अभी हमने डिस्कस किया, दीज आर द डिफरेंट मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स वो मार्केट्स होती हैं जहाँ पर कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है। बिजनेस मार्केट्स आर द मार्केट्स वेयर द बिजनेस बायर्स आर परचेजिंग द प्रोडक्ट नॉट फॉर द पर्सनल कंजप्शन बट फॉर द सेक ऑफ रीसेलिंग और प्रोसेसिंग, जिसमें अगर कंपनी रॉ मटेरियल परचेज कर रही है उसको फिनिश गुड बनाने के लिए तो वो भी बिजनेस मार्केट है। अगर कंपनी रीसेलिंग के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही है तो वो भी बिजनेस मार्केट में आ जाती हैं। देन ग्लोबल मार्केट, द मार्केट्स विच आर बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अ सिंगल कंट्री। एक कंट्री के बॉर्डर से बाहर जाके जो मार्केट डेवलप होती है उसे इंटरनेशनल या ग्लोबल मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर एक कंपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में वर्कआउट कर रही होती है, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रही होती है या मैन्युफैक्चर कर रही होती है। देन नॉन फॉर प्रॉफिट और governmental markets. Non-for-profit markets are the markets where the companies are working not for the sake of profit but for the well-being of the society. Different ट्रस्ट जो हैं वो इसमें आ जाती हैं, जैसे पाकिस्तान में ईदी, अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ट्रस्ट डेवलप की ईदी के नाम से। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ओन्ड एम्बुलेंस सर्विस जो है वो ईदी के पास अवेलेबल है, अभी वर्कआउट कर रही है। ऐसे ही और भी बहुत सारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि सोशल वेलबींग के लिए वर्कआउट कर रही होती हैं। एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल मार्केट्स, द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज़ अ बिग बायर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। जैसे गवर्नमेंट को अपने ऑफिस के लिए ऑफिस इक्विपमेंट्स रिक्वायर होते हैं या मशीनरीज रिक्वायर्ड होती हैं गवर्नमेंट फर्म्स के लिए, और इसके अलावा टैक्स कलेक्शन के गवर्नमेंट के अपने इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ रेलवे, और नेशनल लॉजिस्टिक कंपनी पाकिस्तान में एनएलसी के नाम से वर्कआउट कर रही है। तो दीज आर दी गवर्नमेंट मार्केट्स। यहाँ पर तीन और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस एंड मेटा मार्केट। इनको अल्टरनेटिवली यूज़ किया, बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाएगा, लेकिन दे आर द डिफरेंट थिंग्स, अल्टरनेटिव नहीं है बल्कि डिफरेंट थिंग्स हैं। आप थोड़ा सा फोकस करें तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मार्केट प्लेसेस, द मार्केट प्लेस इज़ फिजिकल सच एज store you shop in, and the
और जो मार्केट स्पेस है दैट इज अ डिजिटल एज व्हेन यू शॉप ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस अवेलेबल है। जब आप फिजिकल स्टोर से परचेज करते हैं तो मार्केट प्लेस होती है, जब ऑनलाइन स्टोर से परचेज करते हैं तो वो मार्केट स्पेस होती है। जैसे मार्केट स्पेस को दोबारा से यहाँ पर मैंने राइट किया है, द मार्केट स्पेस इज अ डिजिटल एज व्हेन यू शॉप ऑन द इंटरनेट। तो वर्चुअल आइटम्स जो आप जो कि आपका वर्चुअल स्टोर है, डिजिटल स्टोर है, ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर है या दराज के ऊपर है या अली एक्सप्रेस के ऊपर है, तो वो मार्केट स्पेस है। लेकिन फिजिकल जो आउटलेट है आपका वो मार्केट प्लेस कहलाएगा। और मार्केट इज द एसोसिएटेड items like a cluster of complementary products and services closely related in the minds of the customer but spread across a diverse set of industries। कि एक कस्टमर के माइंड में वो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेपरेट हों। फॉर एग्जांपल हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो एक शोरूम के पास अगर ट्रैकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी अवेलेबल हो, और इसके अलावा एक बैंक का पर्सन भी बैठा हो जो कि लीजिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो या लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये तमाम सर्विसेज वैसे तो अलग अलग हैं। इंश्योरेंस कंपनी अलग है, बैंकिंग सर्विस अलग है, ट्रैकिंग सर्विस अलग है, ऑटोमोबाइल इटसेल्फ अलग है, लेकिन चारों के चारों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, कम्प्लीमेंट्री हैं। सो ये चारों की चारों इकट्ठी होगी जब हम इनको डिस्कस करेंगे, दिस इज नोन एज मेटा मार्केट। ठीक है, क्लस्टर ऑफ कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स। तो ये चारों की चारों सर्विस जो है वो क्लोजली रिलेटेड है और कस्टमर के इन चारों की इकट्ठी ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज मेटा मार्केट। दैट्स ऑल अबाउट टिल द पॉइंट। हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।